Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 41st lecture of Machine Design and Drawing 2. And in today's lecture, we'll continue a numerical on design of bearing. Okay, so this is numerical number 4, and the numerical is design a journal bearing for centrifugal pump for the following data. Load on journal is 20,000 Newton. See here, load is 20,000 Newton, speed of journal is 900 rpm. Then type of oil is SAE10, for which absolute viscosity at 55 degrees Celsius is 0.017 kg per meter second. So SAE10 is a grade of that oil, and given data is of absolute viscosity of that oil is 0.017 kg per meter second, and 55 degrees Celsius is what? The temperature of oil. Ambient temperature of oil is 15.5 degrees Celsius. So 55 should be a operating temperature of oil and 15.5 degrees Celsius is a ambient temperature of oil. Then maximum bearing pressure for the pump is 1.5 Newton per mm square. Calculate also the mass of lubricating oil required for artificial cooling if rise of temperature of oil to be limited to 10 degrees Celsius. Heat dissipation coefficient is 1232 watt per meter square degree Celsius. This is not the per, here only watt per meter square degree Celsius. Okay, so let us collect the data first. What is given? लोड गिवन है 20,000 न्यूटन. ओके, नेक्स्ट क्या है? आरपीएम दिया है, सो एन इक्वल टू कितना है? 900 आरपीएम. नेक्स्ट दिया है 55 डिग्री सेल्सियस. क्या है वहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ ऑयल इज SE10 फॉर विच एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एट 55 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स दिस इज अ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, सो डिनोटेड बाय TO is 55 degree Celsius and viscosity is denoted by Z, that is 0.017 kg per meter second. Then ambient temperature of oil is given, so TA is 15.5 degree Celsius. Next is what? Maximum bearing pressure is given, so small p is 1.5 Newton per mm square. Calculate also the mass of lubricating oil required for artificial cooling if rise of temperature of oil be limited to 10 degree Celsius. So वो delta T है, 10 degree Celsius difference in temperature, and heat dissipation coefficient, that is capital C, is 1232 watt per meter square degree Celsius. ओके, इतना सब कुछ डाटा दिया है. तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ शाफ्ट या फिर जर्नल दिया नहीं है, सो लेट्स एज्यूम. सो एज्यूम diameter of shaft or journal D is equal to 100 mm. हम स्टैंडर्ड फिगर कंसिडर करें, सपोज 100 mm. ओके, सो अकॉर्डिंगली जो हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो रेशो लेना है L/D, लेंथ बाय डायमीटर ऑफ जर्नल, वो भी कंसिडर करना है. ओके, सो दैट्स वाई हमने एक स्टैंडर्ड डायमेंशन ले लिया है डायमीटर का 100 mm. ओके, सो फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल, एंड दैट टेबल वाज 150.11. ओके, टेबल नंबर 150.11 फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप. सी हियर, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप length by diameter ratio. Okay, the ratio L by D
should be lie between 1 to 2 or 1 and 2. Okay, so let me do it like 1 and 2. So let L by D, अभी यहाँ पे 1 से 2 के बीच में कंसिडर करना है तो 1.5 कुछ भी करो, ठीक है. सो सपोज 1.6 इज अ L by D रेशो. सो L इक्वल टू 1.6 इंटू D. तो L कितना हुआ 1.6 इंटू 100, सो 160 mm. ये स्टैंडर्ड के लिए चल रहे हैं हम. ओके, कोई ये कंपल्शन नहीं है कि 1.6 ही होना चाहिए. यहाँ पे 1.5 है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका लेंथ. नाउ बेयरिंग प्रेशर जो हमने कंसिडरेशन किया है, जैसे यहाँ पे लेंथ हमने डायमीटर कंसिडर किया और L बाई डी ये रेशो 1.6 लिया. अब ये सही है या गलत ये हमें चेक कर सकते हैं हम प्रेशर से. सो pressure on bearing P. Pressure is what? Load upon area. Area is length into diameter. So load is 20,000 by length is 160 और diameter 100. ठीक है. लेंथ निकालने के लिए जो L बाई डी ये रेशो हमने 1.6 एज्यूम किया है और डायमीटर भी हमने एज्यूम किया है. वैसे तो प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो 1.5 गिवन है. ठीक है, फिर भी हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं. सो 20,000 बाई 160 इंटू 100 एंड द वैल्यू इज 1.25. हमने क्या निकाला? प्रेशर निकाला. सो 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर. दिया कितना है? 1.5. हमने क्रॉस चेक करके कितना लाया है? 1.25. That means whatever the value that we have selected is in a safe range. Okay, so diameter 100 चलेगा और लेंथ 160 mm भी चलेगा. तो ये होगी सेफ वैल्यू. तो हमने बस जस्ट चेक किया है. ओके, नाउ एज अ प्रेशर इज लेस, जो प्रेशर हमने कैलकुलेट किया वो लेस है गिवन वैल्यू से, तो हमारा जो कंसिडरेशन है वो सेफ है. किसका? डायमीटर का और लेंथ का. नाउ bearing characteristic which bearing characteristic? That is Zn by P. Okay, Zn by P ये कैलकुलेट करते हैं. सो Zn by P इक्वल टू Z is 0.017, N is 900 and pressure is 1.25. एक्चुअली 1.5 हमने तो जस्ट चेक ही किया है ना. ओके, सो ये रहेगा 1.5. सो Zn by P इज 12.24. ओके, डायमेंशन लेस नंबर है तो हमने ये निकल लिया Zn by P. और द नेक्स्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप for centrifugal pump, this number which Zn by P, the dimensionless number Zn by P is 29.01. जो हमने लाया है वो 12.24 है. ठीक है, बट द स्टैंडर्ड क्या दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए? ये नंबर दिया है 29.01. ओके, सो बट वी नो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ बेयरिंग मॉड्यूलस may break oil film. वो हमने देखा था ना, Zn by P should be 3 times the K. ये सेफ वैल्यू है. तो ये 3 times क्यों? क्योंकि जो ऑयल फिल्म रहेगी वो मतलब वहाँ पे मिनिमम रहेगी क्रिटिकल प्रेशर के लिए. अगर इससे भी कम रहा वैल्यू Zn by P का तो उससे क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा बेयरिंग
और जर्नल का, तो वियर एंड टियर बढ़ेगा, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम से कम रखने के लिए हमें वैल्यू 3 टाइम्स द के लेनी है, ओके। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ बेयरिंग मॉडुलस में ब्रेक द ऑयल फिल्म, hence Zn by P इक्वल टू थ्राइस के। Zn by P हमने सेफर साइड सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कितनी ली है, 29.01, सो 29.01 इक्वल टू थ्राइस के, हेंस के आएगी वैल्यू, के इज 29.01 बाई 3, तो ये आनी चाहिए 9.67। ओके, क्लियर है। देखो हमने यहाँ पे Zn by P कैलकुलेट किया है, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए टेबल में दिया है, दैट इज स्पेसिफिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए Zn by P इज 29.01, ओके। फिर बाद में हमने ऑयल फिल्म के लिए जो मिनिमम ऑयल फिल्म रहेंगी थिकनेस, उसके लिए इसको रिप्रेजेंट किया है, Zn by P शुड बी 3 टाइम्स दी के। सो वहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली, ओके। नाउ सिंस this value of bearing modulus, this value of bearing modulus is less than calculated value of bearing characteristic number hence lubrication condition will be, अब यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे के की वैल्यू निकाली, अब लुब्रिकेशन कंडीशन के लिए बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर हम चेक कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो निकालना है, म्यू निकालना है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, फॉर्मूला है पाई डी एन बाई 60, सो पाई डी इज 100, n is 900। देखो अभी यहाँ पे मैंने mm में यूज़ किया, सो 10⁻³ हो जाएगा बाई 60, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आएगा, ओके। 4.71 rpm रोटेशन पर मिनट है, ये 60 है, पाई है यहाँ पे, ये डायमीटर mm में था इसलिए मैंने 10⁻³ कर दिया, तो यूनिट रहेगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड, अदरवाइज ये क्या हो जाता था, mm पर सेकंड। सो वेलोसिटी हो गया। नाउ coefficient of friction, mu इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 33/10⁸ Zn by P d/c प्लस के, ओके। फिर से ये के की वैल्यू हम 0.002 लिखते हैं, कब विद इन रेंज रहेगा तभी L/D वाला जो रेशो है वो 1 to 2 के बीच में है, तो हमने 1.6 लिया था इसलिए 0.002 वैल्यू हम के की लेंगे, बाकी सब वैल्यू हमें पता है। सो लेट अस कैलकुलेट म्यू हियर। सो म्यू इज 33/10⁸, Zn by P इज 12.24, ये हमने कैलकुलेट की है। उसके बाद में d/c बाय 0.0013 प्लस 0.002, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू 0.0051, ओके। चेक इट फॉर d/c, सो ये आ गया 0.0051, ये क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ हीट, अब यहाँ पे हम हीट जनरेटेड निकालेंगे और हीट डिसिपेटेड निकालेंगे। सो हीट जनरेटेड
क्यू जी इक्वल टू, फॉर्मूला है म्यू डब्ल्यू इंटू वी. सो म्यू इज 0.0051, W is 20,000 and velocity is 4.71. करेक्ट. सो हीट जनरेटेड आया आपका 480.42 क्या वैट. ये हो गया आपका हीट जनरेटेड. नाउ हीट डिसिपेटेड. हीट डिसिपेटेड, सो क्यू डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, सी इंटू ए टी ओ माइनस टी ए बाय 2. ओके. टी ए माइनस टी बी माइनस टी ए था, तो और टी बी क्या है, हाफ ऑफ दिस वैल्यू ना, मिड वे ऑफ द वैल्यू ऑफ टी ओ एंड टी ओ माइनस टी ए, सीधा सीधा. सो क्यू डी इक्वल टू, सी है 1 coefficient of heat dissipation, so 1232 into area L into D, so L is 160 and D is 100. ये mm में है, हमें लेना है मीटर में. सो 10⁻³ 10⁻³ इसका 10⁻⁶, सीधा सीधा कंबाइनली. नाउ ऑपरेटिंग टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, एम्बिएंट टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस बाई 2. ओके. सभी वैल्यूज क्लियर है. तो यहाँ पे आपका हीट डिसिपेशन निकल जाएगा 389.31, 389.31 और इसमें आएगा वैट में आएगा, जूल पर सेकंड में आएगा. ठीक है. तो हीट जनरेटेड हो गया, हीट डिसिपेटेड हो गया. अगर यहाँ पे पूछते अमाउंट ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड, तो हम क्या कर देते, क्यू जी बाय क्यू जी माइनस क्यू डी, सीधा सीधा. ओके. पूछा नहीं है यहाँ पे, नो इशू. नाउ हीट, जैसे अभी ऑयल का मास अगर आपको निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हीट टेकन बाय ऑयल. ओके. सो फॉर हीट टेकन बाय ऑयल क्या हो जाएगा, जितनी हीट जनरेटेड है उतनी हीट टेकन बाय ऑयल है. सो हीट टेकन बाय ऑयल, क्यू टी कर देता हूँ मैं यहाँ पे. सो क्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू टी और क्यू जी इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, मास ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, स्पेसिफिक हीट ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल एंड डेल्टा टी, डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो क्यू जी कितना है, 480.42 इक्वल टू मास एज इट इज, सी पी दिया है 1900 दिया है. देख लो एक बार प्रॉब्लम में, नहीं दिया है, यहाँ पे एज्यूम करना है. ओके. सो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल, सो एज्यूम सी पी इक्वल टू 1900. ओके. 1900. सो 1900, डिफरेंस इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिया है शायद. यस, इट इज़ गिवन एज 10. तो यहाँ पे इजीली मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इजीली निकल जाएगा, m इक्वल टू, और ये आना चाहिए 0.025 kg पर सेकेंड. ओके. क्लियर है न्यूमेरिकल. सो लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन. अब इस न्यूमेरिकल को चेक करते हैं. ये भी सिंपली न्यूमेरिकल है. अ जर्नल बेयरिंग ऑफ 70 mm diameter is used to support the shaft of centrifugal pump in a following condition. Ambient temperature is 30 degree Celsius, oil temperature is 70 degree Celsius, load on the shaft is 8000 Newton, then speed of the shaft is 920 rpm, specific heat of oil as 2010 joule per kg degree Celsius,
टेम्परेचर राइज इज 12 डिग्री सेल्सियस। इतना सब कुछ दिया है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल 2010 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें हमने रैंडमली 1900 ये सिलेक्ट किया है। ओके, सो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस रहेगा इसका यूनिट। ओके, चलो, तो यहाँ पे दिया है, जैसे वहाँ पे दिया नहीं था। एंड टेम्परेचर राइज मतलब डेल्टा टी दिया है लास्ट में। अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड, ये क्या रहेगा, क्यू जी माइनस क्यू डी रहेगा। इफ द बेरिंग इज अनवेंटिलेटेड हाउ मच एक्स्ट्रा ऑयल विल बी रिक्वायर्ड पर आवर। तो यहाँ पे फिर से मास ही निकालना, हमें मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल निकालना है। तो डाटा कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया है 70 mm, देन और सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है, तो सभी कंसिडरेशन हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए करने हैं। L/D रेशो होगा और कुछ होगा। ओके, एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या दिया है, TA दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑयल टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस, तो ये दिया होगा TO। लोड ऑन शाफ्ट मतलब क्या दिया होगा, W कितना है 8000 न्यूटन। स्पीड ऑफ शाफ्ट दिया है मतलब कैपिटल N इज 920 RPM। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल दैट इज CP इज 2010 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। एंड डेल्टा T दिया है 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे विस्कोसिटी गिवन नहीं है शायद, लेट मी चेक इट वंस। विस्कोसिटी इज गिवन हियर, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे दिया है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी Z इज 0.018 ओके kg पर मीटर सेकंड दी है यहाँ पे। सो यही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। सो Z इज इक्वल टू 0.018 kg पर मीटर सेकंड। इवन दो इफ एनी वैल्यू इज मिसिंग, यू फाइंड एनी वैल्यू इज मिसिंग हियर, सो यू कैन एज्यूम, बट दैट शुड बी इन अ रेंज, प्रॉपर रेंज और इन प्रॉपर रिलेवेंस। ओके, कोई भी एब्रप्ट वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी है। So let us go for solution now. Solution. So जैसे फिर से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, डायमीटर जो दिया है, लेकिन जो L/D रेशो हमें चाहिए, इधर K के लिए चाहिए या और अलग अलग चीज़ों के लिए चाहिए, तो वो दिया नहीं है। सो हमें एज्यूम करना है, ठीक है, एज्यूम करना है मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए स्टैंडर्ड टेबल से सीधा सीधा उठाना है। ठीक है, तो हमने लास्ट पार्ट में भी क्या लिया था, उसको L/D इज 1.6। सो फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्रॉम टेबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम टेबल और फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल, L/D इज 1.6। तो इस हिसाब से L कितना हुआ 1.6 इंटू D कितना है 70। सो L इक्वल टू 112 mm। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो L/D रेशो हमें 1.6 है हमारे पास में। K की वैल्यू हम 0.002 लेंगे, L की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, और एक टेबल से हमें C/D ये रेशो लेना है। C इज़ वॉट, डायमीटर क्लियरेंस, एंड D इज़ वॉट, डायमीटर ऑफ जर्नल। जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी लिया था 0.0013। देख लो एक बार यहाँ पे, यस दिस वन, यहाँ पे D/C है, तो C/D रेशो क्या है, डायमीटर क्लियरेंस बाय डायमीटर ऑफ जर्नल, तो वो लिया हमने 0.0013। ये भी हमने स्टैंडर्ड ही लिया है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू हम लेंगे। यहाँ पे
सो सी बाई डी इज 0.0013। ये भी हमें एज्यूम ही करना है, ओके, एज्यूम। क्लियर है? चलो अब रिमेन पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले बियरिंग प्रेशर, बेयरिंग प्रेशर इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लोड अपॉन एरिया, एरिया इज व्हाट, L इंटू डी। सो लोड इज 8000 as we know and length is 112 and diameter is 70। तो यहाँ पे प्रेशर आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में और वो वैल्यू आ रही है 1.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट? चलो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 33/10⁸ Zn बाई पी डी बाई सी प्लस के। सो म्यू इक्वल टू 33/10⁸, Z है 0.018, N है 920 और प्रेशर आया 1.02। D बाई सी क्या है, C बाई डी रेशो 0.0013 था तो ये 1/0.0013 प्लस K हमें L बाई डी के रेशो से लेना है 1.6 है, 1 से 2 के बीच में अगर है तो 0.002 लेना है। ओके, अब तक याद हो गया होगा आपको। सो म्यू आया यहाँ पे 6.12 इंटू 10⁻⁻3, ये आया म्यू। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पाई डी एन बाय 60। सो पाई डी है 70, 10⁻³ का देता हूँ मैं यहाँ पे तो हो गया मीटर, आरपीएम है 920/60। तो वेलोसिटी आनी चाहिए यहाँ पे 3.372, क्या आएगा ये, मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट इज हीट जनरेटेड, क्यू जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला, म्यू डब्ल्यू वी। सो पुट ऑफ द वैल्यूज, म्यू है 6.12 इंटू 10⁻³ W है 8000 और वेलोसिटी निकाली हमने 3.372। तो यहाँ पे क्यू जी आना चाहिए 165 क्या, वैट। हीट डिसिपेटेड निकालेंगे हम। सो क्यू डी इज इक्वल टू सी इंटू ए इंटू टी ओ माइनस टी ए बाय 2 बराबर है, एक फॉर्मूला है। सो सी कितना है 280, एरिया लेंथ है 112 ना, 112 इंटू डायमीटर, एरिया क्या है, लेंथ इंटू डायमीटर और ये मीटर में लेना है। सो 10⁻⁶, -3 इसका -3 इसका इंटू टी ओ, ऑपरेटिंग टेम्परेचर था हमारा 70, एम्बिएंट टेम्परेचर है 30/2 एज इट इज़। तो यहाँ पे क्यू डी आएगा, वो आना चाहिए 43.90 वैट। Got it? Hence artificial कूलिंग, आर्टिफिशियल कूलिंग क्या रहेगी, क्यू जी माइनस क्यू डी। सो ये रहेगा 165 माइनस 43.90, तो ये आना चाहिए 121 पॉइंट समथिंग
0.90 है तो सो 121 पॉइंट समथिंग और 00 ही है वैट। ओके, ये हो गया आर्टिफिशियल कूलिंग का। और मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट टेकन अवे लेते हैं। सो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट टेकन अवे इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी। सो हीट जनरेटेड हो गया आपका 165, mCp दिया हुआ है 2010 और डेल्टा टी दिया है 12 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज 6.84 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड। ये रहेगा मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्लूइड। ओके, थैंक यू, स्टॉप हियर।